Hello and welcome to Cinema, our little podcast on Indian cinema and everything around it. मैं हूं आपका होस्ट श्रीराम और मैं cinestan.com में फीचर राइटर हूं। अब फीचर राइटर होने से मेरे काम की कई एडवांटेजेस हैं। एक तो ये है कि मैं प्रोफेशनली फिल्में देखता हूं, यानी मुझे फिल्में देखने के पैसे मिलते हैं। नाइंसाफी है जानता हूं, लेकिन पिछले 1.5 सालों में मैंने ये काम घर बैठे अपने छोटे से लैपटॉप स्क्रीन पर से किया है। कंफर्टेबल है, कन्वीनियंट है, लेकिन वो मजा नहीं है जो थिएटर के बड़े स्क्रीन पे होता है। कोविड-19 के बाद ऑलमोस्ट 2 साल यानी 1.5 साल और 8 महीने में पहली बार अक्षय कुमार की बेल बॉटम इंडिया के थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। हमने तो फिल्म देखी नहीं है क्योंकि हम महाराष्ट्र में हैं और महाराष्ट्र में फिल्म्स और थिएटर्स अब तक शुरू नहीं हुई है। तो इसी बारे में बात करूंगा मैं केयूर सेता से, प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट, दादर के रेजिडेंट क्रिकेट फैनेटिक और सनी देओल फैन। केयूर, हाय। हाय श्रीराम, हाय। पहले तो इंडिया की लॉर्ड्स की पहल मुबारक, इम्प्रेसिव विन नहीं? हाँ, थैंक यू, सेम टू यू, तुमको भी मुबारक। बहुत ही बढ़िया जीत थी और काफी मायने रखते हैं और खास तौर के जैसे सभी लोगों ने कंट्रीब्यूशन दिया तो ये बहुत स्पेशल है और मैं इस पे बोलता गया तो अलग से पॉडकास्ट इस पे ही करना पड़ेगा। राइट, लेकिन सेकंड इनिंग्स का जो मिडिल ऑर्डर कोलैप्स था उसके बाद मैंने सोचा नहीं था कि ये फिनिश ऐसा होगा करके। हाँ, मैंने थोड़ा सोचा था क्योंकि 4th इनिंग्स में अगर आप बैटिंग करते हो ऐसे पिचेस पे और अगर 200 का भी टारगेट हो तो वो मुश्किल हो जाता है, ऐसा देखने मिला है, तो इसलिए मुझे थोड़ा एक्सपेक्टेड था। एक फिनिश से दूसरे ओपनिंग की ओर, बेल बॉटम रिलीज्ड इन थिएटर्स अक्रॉस इंडिया एक्सेप्ट महाराष्ट्र। या सो व्हाई नॉट महाराष्ट्र? लेकिन हमारी महाराष्ट्र सरकार को ऐसा लगता है कि रेस्टोरेंट्स में और मार्केट में जब क्राउड होता है, बहुत भीड़ हो जाती है तो उससे कोरोना नहीं फैलता, लेकिन थिएटर में अगर 50% लोग भी आ गए तो उससे कोरोना फैलता है। यही रीजन हो सकता है। लेकिन फिल्म दिल्ली में रिलीज हुई है और क्योंकि हम नहीं देख सकते, हमने हमारे cinestan.com के हेड रिसर्चर सुप्रीत कालोन को फिल्म देखने के लिए बोला। ये उनका रिव्यू था। So Supreet, the first Hindi film in theaters this year, was it worth the wait? I think that a lot of people have been waiting very eagerly to get back into cinema halls and watch a good film. And in many ways, Bell Bottom would have been the ideal Bollywood movie to come back to in cinema halls. But sadly for me, it was not worth the wait. I was waiting for with the promos of the film, I was thinking that the film will be an action thriller that would have drama and suspense woven into the narrative. But instead, I found that the film has a predictable, slow-moving plot, and it, made me celebrate the character of Akshay Kumar. And all of it becomes pretty tiresome pretty fast. हाँ, लेकिन that is expected ना। I mean, अक्षय कुमार की पिक्चर है तो focus has to be around अक्षय कुमार. So that's what brings in the audience, I suppose. They were expecting that. Yeah, but I have to say that in this film, and I have liked Akshay Kumar's films in the past, especially Baby and Special 26, which stand out. And it's that same kind of, you're right, that that's what people are expecting, that we see a lot of Akshay Kumar. But in this film, even performance-wise, I felt that that dance that he has of being poker-faced and just delivering his dialogues, and I didn't find it to be working. And because I think the problem lies more with the script as well. So was there a less focus on the progresses and more on the character, which is why it is kind of throwing off? Yes. So what happens is that, of course, the film takes you back into history at a particular time when there were lots of plane hijackings taking place, and in India, and then terrorists were making their demands, and they were being met with negotiations, etc. And so the film takes you right into the plot, right? It wastes no time to plot, and so it seems like, okay, so we're right in the middle of it and we're thrown into the action, and we are going to get into the story. But then it goes into Akshay Kumar's backstory. Right. And that's when the pace really falls. And then there's the songs, and there's, the family scene and what happens, and they tell you about the personal situation, etc. And that makes the pace lag quite a bit. So the first half of the film, one finds that it's really, you're expecting it to make way for the action sequence or the fast-paced narrative, but that doesn't really happen. Right. Again, I understand why they chose this film to go with theaters despite Maharashtra being closed. Is
there is this sense of massy entertainer commercial action with a known name, which would have brought in the footfall. But does it work? The footfall was there when you saw it in theaters? So I was watching the first day first show here in Noida, Uttar Pradesh, and we were 7 people in the hall. Oh. So I think that it's still early days, and the theatre personnel were hoping that the footfall will pick up over the weekend. And so I think time will only tell whether a so-called mass entertainer is able to bring the audiences out from their homes. And I do think that Bell Bottom is for the die-hard Akshay Kumar fan. And I spoke to a few people about their reaction at the film, and one boy there was an Akshay Kumar fan, and he found it totally paisa vasool. And he kept saying that this was his first movie that he was watching in 2 years. Right. Lekin enthusiasm to hoga. I mean, after a very long time, people would be entering the theaters and watching a movie. Exactly. And so, there's this excitement, there's this build-up about this film. And almost after 2 years, one is going into a theatre hall and watching this film. But I did also speak to a girl there who had watched the film with me, and she said the film was just okay, and she got bored in the middle. So how many people really turn out for the film? But has the viewing experience changed? I mean, once upon a time you would simply walk into theatre, buy a ticket, buy a tub of popcorn and simply walk in. So has that experience changed? The rituals might have changed, the working methods might have changed. Does that affect people now? I mean, we were all maintaining distance, of course, and we were all wearing our masks. But I think that given the fact that the numbers are low right now, I think people's guards are also down. And I mean, I told you that there were 7 of us in the hall. So I don't know what will happen if there are larger numbers. People may not find it so safe to come out and watch a film in a hall. But I do think that, we've all grown up loving watching our movies in cinema halls. So, there's much talk about people getting into the comfort of their homes and watching films over OTT platforms. But I think that habits are hard to change. And I think that people love watching their movies in cinema halls, and they will come back. लेकिन कुछ फैक्टर्स तो हैं बेल बॉटम के फेवर में, नहीं के? जी हाँ, कुछ फैक्टर्स डेफिनेटली है. सबसे पहली बात तो ये कि लोगों को बहुत टाइम बाद थिएटर्स में कोई फिल्म देखने मिलेगी, और ऊपर से ये फिल्म भी ऐसी है कि जो थिएटर्स में ही देख सके तो ही मजा आएगा, उस स्केल पे बनी है. और ऊपर से अक्षय कुमार की पॉपुलैरिटी है, और ऐसा लग रहा है कि ऐसे कमर्शियल एंटरटेनर है, इसलिए कह सकते हैं कि कुछ फैक्टर्स तो है उसके फेवर में जरूर. हाँ, लेकिन क्योंकि ये तीसरी फिल्म है जो एटलीस्ट मेन स्ट्रीम है, जो अगस्त में रिलीज हुई है. शेरशाह और भुज इसके पहले निकली. मैंने शेरशाह देखी, तुमने भुज देखी. अब तुम्हें भुज उतनी पसंद नहीं आई थी, राइट? नहीं, उतनी मुझे पसंद ही नहीं आई. यार, कुछ तो नुआंस रखा करो. लेकिन अगर भुज थिएटर में आती तो क्या वो एक्सपीरियंस अलग होता? क्या तुम देखते? मैं देख तो जरूर लेता, क्योंकि मैं मोस्टली सभी फिल्में देखता हूँ. लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे ओवरऑल ओपिनियन पे कुछ भी असर पड़ा होता, क्योंकि फिल्म का कंटेंट तो वही रहता. और ऊपर से इसके वीएफएक्स और वो सब भी ऐसे नहीं, उतने बढ़िया नहीं थे कि आप ये कह सको कि थिएटर में बड़ा एक्सपीरियंस होता, अच्छा एक्सपीरियंस होता. तो मुझे नहीं लगता कुछ फर्क पड़ता मुझे कुछ को. Right. Back to Bell Bottom, the makers have chosen to open in other states, despite Maharashtra being a huge market. Is that a risk? ये बहुत बड़ी रिस्क है एक्चुअली, क्योंकि मतलब सबसे ज्यादा कमाई और सबसे ज्यादा बज़ अगर हिंदी सिनेमा का होता है तो वो होता है मुंबई में. महाराष्ट्र में होता है, खास करके मुंबई और पुणे जैसे शहरों में. तो इसलिए ये रिस्क तो काफी बड़ी है. बट मुझे लगता है फिर भी ये उतनी कुछ तो कॉन्फिडेंट है कि उनको मिलेंगे अच्छे कलेक्शंस बाकी जगहों से, खास करके नॉर्थ इंडिया से. तो इसलिए रिस्क तो है. अभी रिस्क वो सफल होती है कि नहीं वो हमें अगले कुछ दिन में, कुछ हफ्तों में पता चलेगा. लेकिन महाराष्ट्र में आई थिंक सितंबर फर्स्ट वीक में थिएटर्स ओपन होने की बात चल रही है फिलहाल, नहीं? या एंड ऐसे हालत में डू यू थिंक अदर फिल्म्स विल रश इन फॉर रिलीज डेट? क्योंकि मैं जैसे सोच रहा हूँ बेल बॉटम के मेकर्स का ये आइडिया हो सकता है कि हम टेस्ट करके देखें वाटर्स, क्योंकि ओपनिंग अगर चाहे बाकी स्टेट पे भी 50% अटेंडेंस ही अलाउड है, राइट? तो ऐसा हो सकता है कि क्राउड फुटफॉल उतना ना हो. अगर ऐसा नहीं होता है तो मे बी वी कैन रीथिंक इट वगैरह महाराष्ट्र में. तो अगर महाराष्ट्र में सितंबर में ओपन होती है और बेल बॉटम यहाँ पे रिलीज होती है, तो डू यू थिंक इट विल रिटेन दैट बज़? हाँ, मुझे लग रहा है कि कुछ हद तक तो चलेगी अगर सितंबर में आई तो, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि बहुत टाइम बाद कोई फिल्म आई है थिएटर में,
और ये थोड़ी मतलब इसका बज़ भी काफी है, तो मुझे लग रहा है कि सितंबर फर्स्ट वीक में अगर रिलीज हो गई तो कुछ तो थोड़ा बहुत तो पैसे कमा लेगी वो, क्योंकि जैसे 1 सितंबर ज्यादा दूर नहीं है, आज 19 तारीख हो गई है, तो हाँ कुछ चांसेस तो है वैसे महाराष्ट्र में चलने के। इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैं अब बिजनेस इनसाइडर पढ़ रहा था, अक्सर नहीं पढ़ता लेकिन ट्रेड के लिए पढ़ता हूँ, तो वहां पे एलारा कैपिटल जो एक फाइनेंशियल एडवाइजरी कंपनी है, उनका एक स्टडी रिपोर्ट लिखा गया था, तो उन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि बेल बॉटम का कलेक्शन 65 to 70% कम रहेगा यूजुअल अक्षय कुमार के थिएट्रिकल रिलीजेस से। अब अक्षय कुमार की लास्ट थिएट्रिकल रिलीज थी गुड न्यूज, रिमेम्बर, दिसंबर 2019। तो हम Cinestan.com में जब कवर कर रहे थे तो हमने बॉक्स ऑफिस सेकेंड वीक में 124 करोड़ लिखा था, which is a huge number, right? Even though Good News was average in terms of its critical appreciation or even love that it got, बराबर? जी. लेकिन Bell Bottom is not even going to get close, क्योंकि boxofficeindia.com का जो मैं रिपोर्ट देख रहा था, यूजुअली वो प्रीव्यू रिपोर्ट डालते हैं कि कितना कलेक्शन हो सकता है, टिकट का कितना सेल्स है वगैरह। तो 19 अगस्त जो आज का दिन है, द फिल्म इज एक्सपेक्टेड टू मेक 17 लाख और वीकेंड पे 24 लाख। अब these are not even close numbers when it comes to the budget of Bell Bottom. भी नहीं 17 लाख, और ये तो मतलब बहुत ही मतलब ज्यादा कम है। देखना होगा कैसे इतना होता है, क्योंकि मुझे तो बहुत ताज्जुब हुआ ये नंबर सुन के। Bell Bottom का बजट कितना है? बजट एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन ऑब्वियसली 80 से 100 करोड़ तो होगा ही होगा, क्योंकि इस तरह से शूट किया है पूरी फिल्म। यहाँ तक कि ऑलमोस्ट पूरी फिल्म ये लोग ने लंदन में शूट की है, एक्शन सीन्स है, वो सब है, तो इसलिए ऊपर से यू हैड मेडिकल रिस्ट्रिक्शंस एंड यू हैड कोविड टेस्ट, उसके अलग से एक्सपेंसेस हुए होंगे, राइट? जो जैकी बागनानी बात कर रहे थे कि एवरी टीम हैड टू गो थ्रू दैट, हर शूट के पहले, हर शेड्यूल के पहले हो रहा था ना। जी हाँ, तो वो है, उसका भी खर्चा है, तो बहुत बड़े बजट की फिल्म है ये तो पक्का है, राइट? तुम्हारे रिसेंट ट्रेड आर्टिकल में इंटरेस्टिंग, क्योंकि तुमने अभी रिसेंटली एक आर्टिकल पब्लिश किया है जहाँ पे तुम काफी सारे ट्रेड एनालिस्ट वगैरह से बात किए अगर फिल्म के रिलीज और फिल्म के डेट के बारे में। अगर मुझे स्पेसिफिकली अतुल मोहन का ये स्टेटमेंट इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि पहले ही सेड अर्लियर इफ अ फिल्म यूज्ड टू गेट 2 screens in a theater, it can now get 3 or even 4. You can also release it in more theaters. Earlier, if you used to release your film on 1,000 screens, you can now release on 1,500. I mean, he's talking about the post-COVID period where there's not a rush of films releasing in theaters. ये तब अप्लाई होता है जब लिमिटेड फिल्म्स रिलीज हो रहे हो। अगर सितंबर में महाराष्ट्र का थिएटर्स ओपन होता है, इज देयर अ रश ऑफ फिल्म्स रिलीजिंग? आर देयर प्लान्स? हाँ जरूर, एक बार अगर महाराष्ट्र के थिएटर्स ओपन हो जाएंगे तो उसका मतलब ये होगा कि इंडिया के ज्यादातर थिएटर्स ओपन हो गए, और अगर वो हो गया तो प्रोड्यूसर यही चाहेंगे कि उनकी फिल्म जल्द से जल्द रिलीज हो, क्योंकि ऐसे ही जो पड़ी रही है फिल्में तो उसमें खर्चा भी बढ़ता है, तो वो लोग यही चाहेंगे कि उनकी फिल्में वो जल्दी से जल्दी रिलीज करे। और ऐसा पीरियड आएगा सितंबर में जब हमें बहुत सारे ऐसे न्यूज लिखने मिलेंगे कि ये फिल्म रिलीज हो रही है, वो फिल्म रिलीज हो रही है। लेकिन इसमें एक बात है कि जो बहुत बड़े बजट की फिल्में हैं वो शायद अभी रिलीज ना हो, और वो लोग शायद देखेंगे कि माहौल कैसा है। और मैं बात कर रहा हूँ वही सूर्यवंशी और 83 की, जो पिछले साल मार्च अप्रैल से रिलीज होने की ट्राई कर रहे हैं लेकिन अब तक रिलीज हो नहीं पाई है। तो ये दोनों फिल्म का तो मुझे नहीं लगता कि अभी तुरंत इसका कुछ वो लोग रिलीज डेट अनाउंस करेंगे, ऐसे नहीं होने वाला। वो लोग देखेंगे कि कैसी सिचुएशन है, लेकिन जो मीडियम बजट फिल्में होती है और लो बजट है उनके तो रिलीज डेट आते रहेंगे। राइट, लेकिन रिगार्डिंग द डिसीजन टू ओपन डिस्पाइट महाराष्ट्र बीइंग नॉट एक्सेसिबल, क्योंकि मुझे याद है एक टाइम पे अगर महाराष्ट्र में थिएटर बंद है तो वंस अपॉन अ टाइम प्रोड्यूसर्स नहीं सोचते रिलीज करने का, वो लोग कभी नहीं सोचते। क्या ये डिसीजन ओटीटी के कॉन्ट्रैक्ट से इन्फ्लुएंस्ड है? क्योंकि बैकअप प्लान बन जाता है ना। एक तुम्हारे आर्टिकल का ही रेफरेंस दे रहा हूँ जहाँ पे अतुल मोहन फिर से कहते हैं कि if it does not do well at the box office, its price on OTT is affected, and it is vice versa, right? The film is already sold for a percentage and a set income is available. तो क्या ये रिलीज डिसीजन अफेक्ट करता है कि हाँ यार वैसे भी अपने को इतना पैसा तो ओटीटी से मिल ही रहा है तो वी कैन बैलेंस इट आउट? हाँ, मुझे लगता है कि इनको ओटीटी से अच्छी डील मिली होगी, क्योंकि अमेजॉन प्राइम के साथ है। हाँ, अमेजॉन प्राइम के साथ है, और प्लस रिलीज के बहुत पहले वो लोग ने ये डील कर ली थी, इसलिए हम पोस्टर्स में भी देखते हैं कि अमेजॉन प्राइम का नाम आ जाता है। तो ऐसा है कि उनको अच्छी डील वहां से मिली होगी, इसलिए ही उन्होंने इतनी बड़ी रिस्क ली है कि महाराष्ट्र में रिलीज ना करते हुए भी रेस्ट ऑफ इंडिया में रिलीज किया है। तो मुझे लग रहा है ये एक बड़ा रीजन है कि उनको यही वजह से उन्होंने रिलीज की होगी बाकी जगहों पे, ऐसा डिसीजन लिया होगा।
आपके थिएटर में फिल्म देखने का एक्सपीरियंस कैसा है? क्या बदलेगा, क्या रहेगा? आई मीन वी आर टॉकिंग अबाउट द वेरी नियर फ्यूचर नाउ। एक्सपीरियंस थिएटर का तो एक्सपीरियंस अलग ही होता है बिल्कुल, और वो बहुत ही मतलब कैप्टिवेटिंग रहता है। हम भले ही हम लोग ने बहुत सारी फिल्में और वेब सीरीज देखी है पिछले 1.5 साल में हमारे लैपटॉप पे, आंखों में दर्द होने लगता है। हाँ वो है, और भी डिसएडवांटेजेस है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बड़े पर्दे पे देखना एक अलग ही मजा होता है, और प्लस उसमें हमारा ध्यान सिर्फ वहां पे ही रहेगा। यहाँ पे क्या होता है, घर में कोई कुछ ना कुछ बीच में बात करता है, बेल बजती है, सब है। तो थिएटर में वो सब नहीं होगा। अपार्ट फ्रॉम द ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ वॉचिंग द फिल्म ऑन अ बिग स्क्रीन विद सराउंड साउंड, तो ये सब जरूर अफेक्ट करता है अच्छे से। मैं हमेशा थिएटर के अलावा जो बाजू में है उनके बारे में सोचता हूँ, क्योंकि फॉर मी हम जब थिएट्रिकल रेवेन्यू कहते हैं, हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि थिएटर के अलावा a lot of ancillary industries जो थिएटर पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि वो रिक्शा वाला जो स्टेशन से थिएटर तक का भाड़ा लेता है, या वो टपरी वाला, मैं जानता हूँ सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन वो टपरी वाला जो थिएटर के बाहर है उसकी रेवेन्यू डिपेंड करती है थिएटर पे। चाय वाले भी है काफी। एग्जैक्टली, ऑल दीज एंसिलरी इंडस्ट्रीज आर अफेक्टेड व्हेन अ थिएटर डज नॉट वर्क, राइट? सो इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी दैट थिएट्रिकल रेवेन्यू रीस्टार्ट, क्योंकि बाकी कई सारे लोग इस पे डिपेंड करते हैं। जी हाँ, बहुत सारे लोग डिपेंड करते हैं, और इतने टाइम से बहुत नुकसान हो गया है। और जैसे कि हमने अतुल मोहन जी को हमने कोट किया था, उसी आर्टिकल में उन्होंने कहा है कि 1200 से 1500 थिएटर्स बंद हो चुके हैं पिछले 1.5 साल में, जो बहुत ही मतलब डराने वाले नंबर्स है ये। तो इसलिए जरूरत तो है हमें थिएटर्स खुलने की। लेकिन चेहरे ने ऑलरेडी रिलीज की है, रूमी जाफरी की फिल्म है जो रिलीज पे आ रही है, उन्होंने अनाउंस कर दिया है। अमिताभ बच्चन, बिग नेम्स, बट इट्स एन एन्सेम्बल थिंग, इट्स नॉट एग्जैक्टली योर मास एंटरटेनर वाला। हाँ वैसे ही नहीं है, लेकिन उसके ट्रेलर अच्छे रहे हैं लोगों को। अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी की अनयूजुअल पेयरिंग काफी इंटरेस्टिंग लगी है, और वो भी मतलब मुझे लग रहा है थिएट्रिकल एक्सपीरियंस हो सकता है, क्योंकि मैंने उनके डायरेक्टर से बात की थी, रूमी जाफरी से। उन्होंने कहा है कि ये फिल्म की पूरी डिजाइनिंग और पूरी मेकिंग उन्होंने इसी को ध्यान में रख के बनाई थी कि फिल्म थिएटर में आनी चाहिए। तो वो है, वो 27 अगस्त को आ रही है, और मुझे नहीं लगता तब तक महाराष्ट्र में तो खुले नहीं होंगे, लेकिन उसके कुछ दिन बाद, जैसे समझो 1 सितंबर या उसके 1-2 दिन बाद अगर खुल जाए तो चेहरे आ सकती है थिएटर्स में, ऐसा कहा जा सकता है अभी। तो मुझे लगता है बेल बॉटम मेकर्स विल रिलीज इन महाराष्ट्र वंस अगेन। करना तो चाहिए, और वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि अभी पहले हफ्ते में उसको क्या रिस्पांस मिलता है, लोगों को पसंद आती है कि नहीं, लोग बड़े नंबर्स में या इवन डिसेंट नंबर्स में थिएटर्स में जाते हैं कि नहीं। ये सब चीजों पे डिपेंड करता है कि ये सब वो देखेंगे, और उसके बाद ही डिसाइड करेंगे कि महाराष्ट्र में रिलीज करे या नहीं। मोस्टली तो करनी चाहिए, ऐसा लग रहा है अभी। इंसिडेंटली एक इंडस्ट्री जो लगातार फिल्में थिएट्रिकल में रिलीज कर रही है वो है तेलुगु इंडस्ट्री, बिकॉज इवन नाउ श्रीदेवी सोडा सेंटर, लव स्टोरी जो साई पल्लवी और नागा चैतन्य की है, दे हैव ऑलरेडी अनाउंस्ड लेट अगस्त में रिलीजेस, बट वी डोंट सी अ लॉट ऑफ हिंदी प्रोड्यूसर्स टेकिंग की प्रोएक्टिव मेजर्स। फॉर इंस्टेंस विकी जो है, मीडिया की रिपोर्ट है 2021 के लिए, जहां पे उन्होंने बताया कि साउथ सिनेमा हैज ग्रॉस्ड मोर देन हिंदी सिनेमा इन 2020 थ्रू द कोविड, with 3 hit films that grossed over 1 billion rupees in domestic revenue, which is quite the competition for Hindi cinema if it doesn't take proactive measures. जी हाँ बिल्कुल, ये बहुत बड़ा कंपटीशन है, और खास करके तेलुगु इंडस्ट्री तो बहुत आगे निकल गई है। और साउथ में भी अगर आप देखा जाए तो वहाँ के प्रोड्यूसर्स ज्यादा फियरलेस होके अपनी फिल्में रिलीज कर रहे हैं। राइट, दे आर प्लानिंग पैन इंडिया रिलीजेस, राइट? हाँ वो है, और वो लोग रिस्क लेने को तैयार है, और उनको शायद एक बात की गारंटी भी है कि यहाँ की पब्लिक भी आएगी देखने को। तो वो भी एक रीजन है कि वो लोग बहुत श्योर है फिल्म के सक्सेस को लेकर। खैर, छोटी या बड़ी, अच्छी या बुरी, बेल बॉटम एक शुरुआत तो है। सिनेमा के शौकीनों के लिए लैपटॉप और मोबाइल स्क्रीन कन्वीनियंट हो सकते हैं, लेकिन रिप्लेसमेंट नहीं। हमें अब भी याद आती है वो पॉपकॉर्न की खुशबू, वो एसी पुरानी। फिलहाल तो मुंबईकरों को सितंबर तक का इंतजार रहेगा। तब तक सुनते रहिएगा। अगर आपको यह पॉडकास्ट पसंद है तो लाइक, शेयर या कमेंट जरूर कीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द लिंक बिलो।